बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अंबेडकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माता की माता की जैसे अपना संघ जिंदाबाद 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 जैसे अपना संघ जिंदाबाद 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 जैसे अपना संघ जिंदाबाद 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 ये बीएमएच जिंदाबाद 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 बीएमएच जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो जैसे अपना संघ जिंदाबाद 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 जैसे अपना संघ जिंदाबाद 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 वेरी गुड For the third regional GSI conference of GSIES, a bright day, a summer circular in Bangalore there as compared to any other states. So welcome all to Bangalore. Now I invite guests of today's function with a request to come on to position and occupy the distinguished chair. I request Sri Sudhakar Raoji, Secretary General GSIES, onto the dais. Thank you, sir. Now I request Sri Anand, Chairman, GSIS, to occupy his seat on the dais. Thank you. Now I request Sri T.S. Ravindra ji, General Secretary GSIS, to please share the dais. Thank you, sir. Now I request Srimati T.V. Usha to give welcome address to start our conference. Usha. At the outset, I bid a very warm welcome to the General Secretary GSIS, Shri M. Sudhakar Rao, on this third regional conference of GSIS. We are honored to have you here, sir, today. It is a great pleasure to welcome the Chairman GSIS, Shri Kandraj, and the General Secretary, Shri T.S. Ravindra. I am extremely delighted to welcome all the delegates from other regions who took out their valuable time and joined us today to be part of the third regional conference of GSIES at Bangalore. I wholeheartedly welcome all the retired officials of RSAs who have joined us here today. And I also welcome all the senior officers and members of GSIES who are I would like to say that due to paucity of time, I will not be able to read the full statement of accounts. I am just giving a brief on this. We are submitting the accounts for the period from 1/1/2018 to 31/3/2022, which has been audited by K.L. Murthy from PAO. During the course of tenure with the wholehearted support of my fellow members, I tried to solve many grievances as per bylaws of our Sangh. This convention would have been held last year, but as everyone knows, the delay due to COVID-19 pandemic situation. Now, government has eased the restrictions and normal lifestyle is gradually coming back to the pre-COVID period. As such, I am happy that we are conducting now. Due to successive pay commission and improvements in rules, regulations and simplification of service matters, repealing of unwanted and cumbersome rules, old problems like pay anomaly, stepping above pay service matters, etc. The problems of members have come down over a period of time.
some of the major problems sorted out by the Sangh is here. RSAS unit of GSI Sangh took active part in various day-to-day affairs as enlisted by the DOPT and within the framework of relation to authorities on various matters and got appreciated by them. Took up many issues through ROC pattern and presented the issues effectively and was able to convince the authorities to arrive at some logical conclusions. Settlement of most of the cases on pay fixation in drawing and survey strips, most of the cases. Settlement many wrongful pay fixation MTS stream and other allied cadres. Pressurized the authority to hold the TPC and MACP on time. Ensured except GSI employees and no other service association unit is open in RSAS during this period. This itself shows the unity of our members. At the end of, once again, I am thankful to the members who reposed faith in me, and if I have achieved anything during my tenure, the entire credit goes to all the members of this unit. I am thankful to CWC for giving their valuable suggestions as and when required. My special thanks to our beloved friend and Secretary General, Mr. M. Sudhakar Rao, Mr. Praveen Singh, President of the fullest support and cooperation. My thanks to all the TDGs, HOD and HO and other officers and authorities of RSAS Bangalore who have supported us in all our activities. My sincere apologies if I have hurt anyone knowingly or unknowingly. My humble request to all the members to continue their full support to the new committee also. I am very, very happy to give me opportunity for this. RSAS का स्टेटमेंट कर्नाटक से जो साथी आए सबको स्वागत करते हुए और अभिनंदन देते हुए और धन्यवाद बोलते हुए मैं मेरी दो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले कल रात में खबर मिला मेरे को 4 आदमी के सामने खुशी बांटने के लिए यही प्लेटफॉर्म मिला मेरे को। GS एम्प्लॉय संघ मिनिस्टर ऑफ नेशनल रेजिग्नेशन दी भी रहता है मेरे बगल में रह के मेरे से क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करने का उसको है, लेकिन मेरे पास कोई आर्डर नहीं। लेकिन मान के चल रहा हूँ इसलिए इस डिपार्टमेंट का मुखिया जिसको कहते हैं DGGS से खुद फोन करके बोला तुमको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। मैं ट्रेन में है, वो एयरपोर्ट पर बैठा है, तो अच्छा लगा। मेरा डीसी मेरे को फोन करके बोलता है, तो बोला आपका दोनों ऑर्गेनाइजेशन का मैं रेजिग्नेशन दे दिया। तुरंत मैं वहाँ अथॉरिटी को फोन किया नीचे लेवल में जो है, बोला मैं फाइल देगा नहीं। तो इसका अर्थ क्या होगा, मिनिस्ट्री में जो दस्तखत हुआ वो कवर लेके डीजी साहब ने एडवांस में अपने को बताया। तो यही प्लेटफॉर्म से मैं उसको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। पहले कोई डीजी इंटरेस्ट लेके रेजिग्नेशन लाया नहीं, रोकने का बहुत प्रयास किया, मुख्तर जी का समय लेके, दूसरा किसी का समय लेके, उसका रिजल्ट बहुत कुछ बुरी हुआ, नया ऑर्गेनाइजेशन पैदा होने के तक गया। तो जो भी हो, तो ये प्लेटफॉर्म से इस RSAS का डेलीगेट सेशन से तो बाहर से भी आए सो लोग आपके सबका समझ से मैं DGGS को एकदम धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। वो ऑर्डर अपना हाथ में अगर अपना 5 तारीख अंदर आ जाएगा तो वहाँ भी ओपन सेशन में कुछ डेलीगेट सेशन में आइंडे का और कुछ लोग ज्यादा रहते हैं, वहाँ भी चर्चा कर सकते हैं। रहा दूसरा, तो यहाँ कैसे अजीब वातावरण होते हैं। बाहर का भी कॉन्फ्रेंस किया है, कुछ कलकत्ता का कोई उंगली करना या हैदराबाद से उंगली करना या जयपुर में होता तो लखनऊ से करना, ये बहुत कुछ काम चलते हैं। एक ही जगह बचा है बेंगलोर, कॉन्फ्रेंस होता तो कोई लीडर सामने नहीं आता। तो कर्नाटक सर्किल हो RSAS कल्चर क्या है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन इतना सालों से मैं देख रहा हूँ 822 में, लेकिन ग्रेजुअली सिंगल यूनिट कोई एक भी मेंबर नहीं है दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में, वो ड्राइवर्स यूनियन छोड़ के ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है GSM में, सिर्फ RSAS है। होता है टुड्डी पकड़ के रिक्वेस्ट कर करके किसी को सामने लाना है। कर्नाटक का भी यहाँ का भी है, तो आपको बधाई देता हूँ, यूनिटी आपने रखा है। बीच में ये भी हुआ, विभाषा के प्रयास किया एम्प्लॉय संघ में एक आधा को लेके जाने के लिए, फिर रुक गया। फिर अभी कोई सुभाष प्रभाष कोई कलकत्ता से कोई उंगली करेगा, मैं आपसे, क्योंकि मेरे को ज्यादा सर्विस नहीं है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ आने वाले दिन में ये कि हो कर्नाटक और RSAS में जो भी है कोई दूसरा यूनियन ना हो, या ऐसा ही आप लोग काम करेंगे, सबसे मिलजुल करेंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ। तो ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा रहेंगे, ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ।
रहा जो आज हमको इधर इतना आदमी आने का जरूरत नहीं था। अगर आपका काम में सही तो कभी बुलाने से भी ज्यादा बेंगलुरु में आते, छोटा ही रूट है, इधर जाके क्या करेंगे। लेकिन आज कलकत्ता, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई अलग अलग जगह से आया, इसलिए जो इतना साल हमको नेतृत्व किया जो टी एस रविंद्र जी, जो मेरा प्रिय मित्र मैं कह सकता हूँ गर्व से, अगर मित्र हो तो कुछ एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। ऐसे एक आदमी 2 दिन बाद रिटायर हो रहे हैं, वो जाने का पहले ये मेरे से 1 साल से झगड़ा कर रहा है कि इलेक्शन करवा पाओ, इलेक्शन, मैं भी टाल बहाना कर रहा, क्योंकि जब दूसरी वाला कुछ क्वेश्चन करे आधार ऑर्गेनाइजेशन है तो मेरी स्थिति ऑर्गेनाइजेशन को उंगली करे, तब तक बैलास में कभी जनरली जाता नहीं। तो मेरे को कनाडा से बहुत कुछ लेटर्स आते हैं, बैलास पालन करो, बैलास पालन करो। तो वहां जरूरत पड़े तो हम भी बैलास के वालों को बात करेंगे, लेकिन जहाँ कुछ हमको उंगली नहीं करता है सीईसी को या दूसरी बगल यूनिट वाले को, तो हम भी साइलेंट है, चला है इतना दिन। लेकिन आज उनको तो कॉन्फ्रेंस करके दूसरे को चुना है, तो वो भी कंपनी बताया मेरे हाथ में दे दिया, इसलिए मैं ये दे दिया बोल रहा हूँ। यहाँ अगर मैं आधा घंटा समय भी आपको दिया, आपको पैनल आता है। यहाँ का प्रैक्टिस जो 1985 में फर्स्ट टाइम आया मैं किसी रामकृष्ण के साथ, जब से मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े स्टार थे। एक सेकुली महाराज थे टी एस वेंकटरामन, अभी जिंदा है कि नहीं मैं नहीं जानता, अभी जिंदा है, तो अगर कुछ इंटरव्यू मिलना चाहिए तो घर का एड्रेस दो। यूनियन चलाना है, उससे सीखना है। रामकृष्ण, चंगानी, चटर्जी, टी एस वेंकटरामन, हरिप्रसाद, ये जो कुछ लोग थे कनाडा का बाहर, वहाँ कनाडा तो मुखर्जी ब्रदर्स थे, तो ये लोग जो चलाते थे, तो टोटल 822 का सेकुली महाराज थे टी एस वेंकटरामन, लेकिन बहुत तगड़ा था। सेकुली क्यों कहा मुझे पता नहीं, हम भी ऐसा ही सेकुली मामा को कहता था, वास्ते थे, लेकिन मेरे से लगभग शायद 25-30 ईयर्स बड़ा है, फिर भी कभी किसी को कोई गुस्सा नहीं किया। तो अभी अच्छा लगता है, जिंदा है, 85 प्लस होगा, 90 का नजदीक जा रहा है, 88। तो ये सब किया कुछ दिन पहले, शायद लास्ट फ्राइडे मैं चंगानी जी के घर में गया था। 800 वैसे जो फर्स्ट फाउंडर प्रेसिडेंट है, 83 चल रहा है, 25 साल रिटायर हो गया, उन्होंने सिलेक्शन कर दिया, बहुत एक्टिव है। डी शर्मा से मिला, वो तो उम्र में बहुत कम है, 70 प्लस है। तो जो लोग नेतागिरी किए अभी भी कर रहे हैं, जैसा मुकुंद राजन चेन्नई में बैठा है, उसका नाम बोले तो डीजी भी सोचता है यार ये काम मिली करे, काम कुछ लेटर फेंक दे। तो आज भी आपका अच्छा लगता है कि कल का दिन कुछ जरूरत पड़े उसके बाद जाकर दरवाजा खटखटा सकता है, आप मिल के दे सकता है। आज भी ताकत रखे, वो नॉलेज भी रखे। जीएसए का हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्कुलर्स लेटर्स जो भी नया नया अमेंडमेंट्स आते हैं सब पर भी वो लोग रेडी रखते हैं। तो एक जगह तो अंदर भी मैं भी 4 महीने में रहूंगा, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। आज रविंद्र जी का रिटायरमेंट हो रहा है, कल से किससे बात करें एमएससी में, तो उसके बाद जो वर्ष आएगा जो उसके पीछे वो भी ऐसे ही काम करेगा। नमस्ते सुधाकर जी। नमस्कार आनंद जी, वेलकम, बैठिए। तो जो आशा मैं प्रकट किया था इकट्ठा रहेंगे, आने वाले दिन भी इकट्ठा रहेगा, मैं आशा अभी भी रखता हूँ। तो साथ साथ एक तो कहूंगा मैं, आज तक कर्नाटक में एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही यूनिट चल रहा है एक ही जगह में, ऐसा ऑल इंडिया में होने से भी अच्छा है, लेकिन होता नहीं। फिर यहाँ छोड़ना है, कोई अगल बगल वाला नहीं, कभी कनाडा से आएगा, आगे 1-2 दिन बैठेगा, किसी एक को कुछ करेगा, 1-2 आदमी मिलेगा, फिर प्रयास करेगा, तो वो तो नेचुरल है। हम भी जाए कनाडा जाएगा तो कुछ करेगा, ये बोल जाएगा तो 822 का कमरा बैठेगा मैं जाके। तो वो जितना वो प्रयास करे, उनको प्रयास को कामयाबी ना होने देना, ये शपथ लेना है। उसके काम उसको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उनकी डेमोक्रेसी है, जो अपना अपना काम करेगा। मैंने पहले किया था मगर सक्सेस नहीं हुआ। मैं पहले किया था, सक्सेस नहीं हुआ, विभाष हो गया, सुभाष प्रभाष आएगा, वो भी होने नहीं देना। ये शपथ लीजिए, जो कमिटी आ रहा है, जो कार्यकर्ता है, जो जनरल मेंबर है, तो एक है अभी ओपन सेशन में भी, उसमें भी थोड़ा कुछ बताना पड़ेगा मेरे को, इसलिए ज्यादा बोलना उचित नहीं है मेरे को। ये लोग मतलब सेक्रेटरी होने वाला सेक्रेटरी दोनों को ही बैठा है, ये कागज पकड़ा है मेरे को, ये पढ़ के सुनाने के लिए। तो अगर ये पढ़ के सुनाने के बाद आपको कुछ ऑब्जेक्शन है, जनरली कॉन्फ्रेंस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय देते हैं कि नया पैनल दो। मैं इतना कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अटेंड किया, समय देके भी कोई फायदा नहीं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट नाम पढ़ के सुना रहा हूँ। ये दिया है लोग मेरे को 13 नाम नहीं आता है, पहला उसको पालन करना है, थोड़ा बहुत नजरअंदाज इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन मेंबरशिप में, ऑफिस बेरर्स में पक्का पालन करना है, क्योंकि मैं खुद उंगली करता हूँ सदन रीजन में, ये कमिटी ठीक नहीं है, ये कमिटी रद्द करो, तो वो लोग भी चुप नहीं बैठेगा।
तो आपको 13 नहीं आता है, आपका आज के मेंबरशिप के हिसाब से 10 ऑफिस बेयर आता है, 3 ऑफिस बेयर काटना पड़ेगा। एक प्रपोजल आया जो जीएस से ये किया, ये कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ के लास्ट कॉन्फ्रेंस में लोग किया कि 1:7 को हम भी उसी को कापी मार के 1:7 लगाया, डेलीगेट जो बनता है, डेलीगेट बनने के बाद ऑफिस बेयर बनता है, तो 1:7 को लोग 1:5 किए। हम भी सोचा बहुत स्टाफ कम होते जा रहा है, कहीं कहीं ऑफिस बेयर को ढूंढने में मुश्किल हो रहा है, तो 1:5 करने के लिए एक प्रपोजल आया। शायद कुछ अच्छा दिल से प्रपोजल लगाएगा, अगले कॉन्फ्रेंस उसको मान लेंगे, तो मानने के बाद आप चाहे तो आप 4 ऑफिस बेयर को ले सकता है, लेकिन आज सिर्फ 10 में रजिस्टर करना है। ये 13 में मैं पूछा था, नीचे लास्ट का 11, 12 तक पेंडिंग रखिए, हम लोग 6 मई का बाद फिर वापस आके ये 3 का साथ और एक को ऐड कर लेंगे। ये लोग दोनों बातचीत करके मेरे को बोला था, तो मैं फर्स्ट 10 नंबर में पढ़ के सुना रहा। सर्वश्री ए अल्लप्पा जी यूडीसी चेयरमैन, श्री डी बाबू जेडीए दिल्ली वाइस चेयरमैन, श्री मुनुस्वामी एमपीएस वाइस चेयरमैन, श्री कांतिराज असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, श्रीमती टीवी उषा यूडीसी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, श्री नागप्पा ड्रिलिंग असिस्टेंट असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, श्री टीएम पांडुरंगा स्टोर कीपर ट्रेजरर, श्रीमती ए नागलक्ष्मी यूडीसी अपने सेक्रेटरी। तो क्षमा चाहता हूँ, एक नाम छूट गया थी, श्रीमती टीजे रूपा लैब असिस्टेंट ग्रेड 1 आर्मी सेक्रेटरी। अच्छा, इसमें तो ग्रेड 1 मारा है, आप हमको गाली देगा, आपको डिफॉर्मेशन सब डालेगा, थोड़ा देख समझ के। अगर उनके मुंह दिखाओ इस तरफ। ग्रेड 1 को जेडीए डाले तो ठीक था, लेकिन जेडीए को ग्रेड 1 डाला, ठीक है। तो एन लोकेश लैब असिस्टेंट ग्रेड 2, ये भी ठीक है, ग्रेड 2 है, आर्मी सेक्रेटरी है, ये है, ये मेरे को दिया ये लोग। तो इसके ऊपर किसी कुछ ऑब्जेक्शन है? ये फॉर्मेट है, मेरे को पूछना है। ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 10 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು 13 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th and 6th ಜೈಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಇದು 1:7 ಇರಬಹುದು, 1:5 ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನ ನಾವು 4 ಜನ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಯ್ಕೆಗೋಸ್ಕರ 3 ಜನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದರ್ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ RSS ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೇ, ಎಲ್ಲಾರು ಲೀಡರ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್, not only for Ravindra, everybody is leader. So like that only I am also treating, even the future board also, sorry, committee also treating like that. So I request all the members to accept this one. And तो इसमें दिया 6 आदमी सेक्रेटरी, वायरस में नहीं, रीजनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपको ये ऊपर ले जाना पड़ेगा, आपको असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी वाइस चेयरमैन में, ये दोनों को आप एडजस्ट कर लेके नेक्स्ट और एक ऐड करके 14 ऐड कर ले सकते हैं 14 का। तो इसको मैं ये इलेक्ट हुआ आने वाला 2 साल तक डिक्लेयर कर दें, आप सबका सहमत से, तो तालियां जोर से हो जाए। धन्यवाद। Thank you, sir, for your address. And it is great that there is no objection for the statement of accounts, but still I request to approve and somebody should second it. Of the third regional conference GSIES Bank RSS Bangalore. On behalf of the organization, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guests and dignitaries on the dais. Shri M. Sudhakar Rao, Secretary General, for his help and support at various stages, without whom this event would not have been possible. Thank you, sir. Shri Kantra, Chairman, for his constant guidance that radiated into the making this event a grand success. Thank you, sir. And Shri T.S. Ravindra, General Secretary, for making the time to be with us and for presenting the General Secretary's report impeccably. Thank you, sir. Furthermore, I would like to thank Shri A. Arulappa, Treasurer, for presenting the statement of accounts, Srimati Usha for her inaugural welcome speech, and so also thank Srimati A. Nagalakshmi for comparing today's event so well. Thank you, ma'am, and thank you, sir. Finally, I would like to thank all the dignitaries, delegates and various regional officers and retirees of the involvement
They have shown and that willingness they have expressed for making this event happen under such short notice. Thank you once again. Thank you all of them for the both of them. And now there is small announcement. Now there will be tea outside, and I request all of you. Shri काय चांगले Shri B.A. कहाँ? HOD, RSS, HO, RSS, HO कर्नाटक यूनिट और आप सबको मेरी ओर से प्रणाम। सुबह जो डेलीगेट सेशन में पढ़ के सुना वही नाम है चेयरमैन ये अरुणप्पा आने वाला 2 साल के लिए श्री डी बाबू इंटरव्यू वाइस चेयरमैन, श्री मुनिस्वामी वाइस चेयरमैन, श्री कांतिलाल दर्शन जनरल सेक्रेटरी, श्रीमती टी उषा असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, श्री डी नागप्पा असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, टीएम पांडुरंगा ट्रेजरर, ये नागलक्ष्मी आर्गनाइज सेक्रेटरी, Parents of GSIS and I congratulate the new body. Now I request Shri Devkumar Bhattacharya, DDG and HOD RSAS to deliver the to address the gathering. सबका मेरा नमस्कार। आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि एक पैटर्न जो रविंद्र जी कैरी कर रहे थे, मैं यहाँ से आने के बाद से उनके साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन हुआ। Extremely thorough gentleman, a good leader, always helping others. अब उनका जगह कोई लेने वाले हैं, उनको मेरा हार्दिक अभिनंदन। जो अभी नया कमेटी बने, जो इसका आगे काम करते रहेंगे ऑफिस के लिए, सबके भलाई के लिए। तो ये अवसर सिर्फ हम लोगों का कोई नया यूनियन का गठन उसका नहीं है, लेकिन ये रविंद्र जी को विदाई देने का भी एक अवसर है। हालांकि उनका अभी भी कुछ दिन बचा है और भी काम करते रहेंगे।
सुनाई दे रहे हैं ना, चलेगा। नागप्पा महादेव कह रहे थे, महादेव भाई महादेव, ठीक है। तो ये बहुत ही एक खुशी की बात है। नया कमेटी अभी अपना काम संभालेगा और आगे बढ़ते रहेगा। ये ऑफिस के लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना है और जो भी भला है सबका उसमें योगदान होना चाहिए सबको। तो ये आगे भी बढ़ते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा और मेरे ख्याल में ये चीज़ काम नहीं करूँगा। तो इसी शब्द के साथ मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी कॉर्पोरेशन, जो भी एक साथ काम करने का जो सिलसिला है आरएसएस में, बहुत अच्छा रिलेशन है, तो वो जारी रहेगा और इसके आगे भी हम लोग अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। आप लोग आ सकते हैं बातें करने के लिए। और इस हॉल में मौजूद लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं आज जो आपकी आरएसएस की जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है, मैं उसको हार्दिक बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसी पिछली कार्यकारिणी रविंद्र जी की और आप लोगों की कार्य कर रही थी, आने वाली कार्यकारिणी भी उसी तरह से कार्य करेगी और एम्प्लॉइज की वेलफेयर की करेगी और जीएसआई को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ऐसे मेरा आप लोगों को शुभकामनाएं बहुत बहुत। मैं एक और आपको बधाई देना चाहता हूँ, जैसा कल सूचना मिली है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जीएसआईएस और जीएसआईए को 5 साल की रिकॉग्निशन देती है। 5 साल तक आप लोग फिर एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए चाहे आरओसी हो, ऑफिस काउंसिल हो, डिपार्टमेंट काउंसिल हो, यहाँ पे उनसे संबंधित आप मुद्दे उठाएंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। मैं इस मौके को 2 मिनट और लेना चाहूंगा कि मुझे पता है, मैं जयपुर से भी आया हूँ रविंद्र जी के लिए, क्योंकि रविंद्र जी रिटायर हो रहे हैं। इनके साथ मेरा बहुत लंबा संबंध रहा है। वैसे तो 15-20 साल से हम बहुत रहे हैं, लेकिन 8 साल से हम दोनों ने साथ साथ एसोसिएशन की और एक बार यही जब कॉन्फ्रेंस थी तब उसके थ्रू मैं यहाँ आया था और मैं तो कहूँगा मुझे गॉड की गिफ्ट थी कि जैसा रविंद्र जी जैसा दोस्त मुझे मिला। क्या थोड़ा जेंटलमैन, कभी किसी से होट में बात नहीं करनी, इजी वे में बात करनी और समस्याओं को जितनी अच्छी ढंग से, मतलब बिना किसी तकलीफ के सुलझा सकने वाला काम किया जा सकता है और रविंद्र जी से सीखने वाली बात। इसीलिए आज रविंद्र जी को पूरे ऑल ओवर इंडिया में जानते हैं सभी। जहाँ भी यहाँ से भी कोई जो ऑफिसर्स जाएंगे, हमारे यहाँ भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, वो सब लोग जानते हैं क्योंकि उनका नेचर ऐसा है, सबके साथ अपना व्यवहार ऐसा बना के रखते हैं। तो मैं इस मौके पर रविंद्र जी के वो जो रिटायरमेंट लाइफ है उसके लिए विश करूंगा कि हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सर। Respected Sri Kumar Bhattar Sahab, DDG and HOD, RSS Bangalore. Respected Sri S. Surakarnaji, Secretary Tourism India, Employees. Respected Sri T.S. Ravindranji, respected Director and Head of Office, and other dignitaries, my dear colleagues and friends. It is my great pleasure to invite me to here to third Regional Conference of Jewelers of India, RSS Bangalore. आज का दिन हम लोगों को जो एम्प्लॉइज का कार्यकर्ता है, मेंबर्स है,
खुशी का दिन नहीं है, इसलिए रविंद्रन जी रिटायर होने वाला है। हम लोग एक लीडर, हम लोग को सबका परिवार से बाहर रहेंगे, फिर भी एकदम डायरेक्टली उनको नहीं संबोधन नहीं पाएंगे, दुख लगता है। साथ साथ ये नया कमेटी हुआ है आरएसएस बेंगलोर का, उसको हार्दिक बधाई, अभिनंदन हम लोग का तरफ से। रविंद्रन जी जैसे फुल यूनिटी में आरएसएस बेंगलोर में ओनली वन संगठन रखकर सबको लेकर चलते थे, ऑल इंडिया में भी उनका बात सब लोग सुनते थे, और अभी तक वो रिटायर होने के बाद भी उन्होंने हम लोगों को प्यार करेंगे, हम लोग को जो एडवाइस देंगे हम लोग यूनिटी होकर रहेंगे, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। आज और एक खुशी का दिन है, मैं धन्यवाद दूंगा मेरा ऑल इंडिया का सेक्रेटरी श्री एम सुधाकर राव जी एंड ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री गोविंद कुमार सिंह जी एंड आधार कर्मकर्ता, जो हम लोग को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज संघ का फिर 5 साल के लिए रिकॉग्निशन मिला है। सबका मेंबरशिप हम लोग लास्ट ईयर में किए थे, हम लोग 35% अचीव कर लिए थे, शायद ऑर्डर 1-2 दिन में आ जाएंगे, इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा। तो रविंद्रन जी का बारे में जितना बोलो उतना भी कम है, क्योंकि हम लोग कर्नाटक में है, जब संगठन को बारे में हम लोग कुछ गलती भी करता है, उन्होंने इतना प्यार से हम लोग को समझाता है, अच्छा लगता है, हम लोग पूरा रिक्टिफाई भी कर लेता है, एडवाइस देता है संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा आफ्टर रिटायरमेंट रविंद्र जी का एडवाइस हम लोगों को रहेगा, और हम लोगों को संगठन आगे बढ़ाने के लिए जो जो करना है हम लोग जरूर करेंगे, और इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज हम लोग संगठन को आगे बढ़ाएंगे। आज वी लाइक टू फेलिसिटेट आवर रविंद्रन जी फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑफ कोलकाता वेस्ट ऑफिस। चलिए प्रोग्राम का भारी करेंगे, फिर एक बार थैंक यू देंगे सबको हम लोगों को बुलाने के लिए, अच्छा लगा, थैंक यू। भारत माता की जय। DDG and HOD RSS Dev Kumar Bhattacharya sir, Sudhakar Rao, T.S. Ravindra and Kantraj. Delegates came for this third conference of employees from different offices of GSI. Retired employees of GSI, ladies and gentlemen, it's a great feeling to be with this employees Sangh function or conference today for me, because for last 1 year, 1.5 years, I was in RSS and was in close association with the office bearers of last office bearers of Sangh for last, and I now congratulate the new office bearers of the Sangh for the next 2 years. I like to congratulate all the office bearers. My experience with the union people for the last 1 year very cordial. Though they have some problems, it was with the guidance of HOD and then HO Shivswamy Saab. There was no problem at all. Whatever the small problems were solved, because even in 2 or 3 ROC I attended, there was this just for namesake ROC, no big issues, only small issues which were discussed and solved there itself in the ROC. So the relation between the management and the union here is very cordial, and I hope with the next office bearers of the Sangh, the same relation will go on. Of course, there are very few problems in RSS, and I hope that the same cooperation we will get from the next office bearers. I take this opportunity to wish Ravindra for successfully completing
his journey in these Sangh activities. Of course, the day after tomorrow there is a separate farewell function. There we can share our views about Ravindra. But for union activities, I've seen him since I was posted in Bangalore. He is very actively involved in all the union activities and for the cause of all the employees. So I have to congratulate him for his tireless efforts for all the employees. So I take this opportunity once again to wish him happy retired contented retired life. Of course, for after 2 days there will be a separate function for that. And I thank all the retired employees and all the delegates who have come to Bangalore for this conference. Thank you, Anand. Dignitaries on the dais, delegates of employees who came from different regions of GSI, retired officials of RSS and SUKG, and also serving officials of RSS and SUKG. So I thank the organizers for inviting me on this occasion. I am happy that everybody is praising Mr. Ravindra for his contribution in the Sangh activities. I wish that this employees Sangh will be a bridge to sort out the issues of the employees with the GSI authorities, and I wish all the best for this employees Sangh committee, new body, and let them take up the issue with and wish all the best to them. Thank you. Namaskar, respected DDG and HOD and my senior colleagues and other members. The entire proceedings is in either Hindi or English. I will talk in Chairman topics. So, at the outset, I would like to congratulate Mr. Sudhakar, Praveen Kumar, T.S. Ravindra and others for having established GSIES in GSI. See, earlier what happened, we were in staff union and other, and that is affiliated to Congress. Then we went to, there was no other alternate, then we went to communist-based union. So somehow, many of us in Bangalore in the southern region, we are very reluctant to continue in those associations or union. So when time has come for change, and that opportunity was wisely accepted and executed by Sudhakar, Praveen Kumar, Govind Sekar and Ravindra. So that was the story of GSIES in GSI. So at the same time, even when Ravindra took over, many of us have some feeling that whether he will continue as General Secretary or otherwise, but he outwitted every one of us. So we have seen many General Secretary in GSI, myself, Anandra, Aivan and others. So he continued about 10 years, more than 10 years as General Secretary of GSIA and GSIS. So he contributed many things and he sorted out many problems of our employees. So I congratulate Mr. Ravindra for this activities and other things. So I once again congratulate to him, and I also request our new committee to take up the similar activities in GSI. So thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಆನಲ್ ಬಟ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ GSI.
5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 65 years. RCS, GSI, RCS, both are there. So, first, I want to make a note that Mr. Bhattacharya Sahab, I am Arab Bhat. आपको एक बार देखने वाला फिर भूलेगा नहीं. So, respected Bhattacharya Sahab, Sudhakar ji, Mr. Ravindra ji, and Mr. Kantaraj, and my other old colleagues, directors, and my retired people, all of you, namaskar. So, the thing is, retired life, how it will be, I was also not knowing. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ನೈಸ್ಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ GSI has given everything in life. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ GSI, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, GSI will give you everything. You make only one hope that GSI will give you everything. That is the only thing. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಜಿತನಿ ನಿಯತ್ ಉತನಿ ಬರ್ಕತ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಅದು ಜಿತ್ನಾ ನಿಯತ್ ಉತ್ನಾ ಬರ್ಕತ್. ನಿಯತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೇ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಇದೇ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಯತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ GSIEA ಇಂದ GSIES ಗೆ when we merged with, that time we were thinking, aವಾಗ Bibas Day was the general secretary general, they were all thinking ಹೇಗೆ how to put one person in GSIES ಅಂತ. I was also always thinking welfare, who is doing the welfare measures, who is taking it. Many people they opposed when we put Ravindra's name. But ರವೀಂದ್ರಗೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇದೆ. ವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ವಿಷನ್, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಡು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ 10 years. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ವಿಷನ್, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ವಿಷನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್, ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ಹಿ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ಗೂ ಅದೇ ತರನೇ. ಸುಧಾಕರ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗೋ ಇದೆ, ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ವಿಷನ್, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ಹುಕ್ ಆರ್ ಕ್ಲೂಕ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಟುಡೇ GSIES is successful because of that. And ಮುಂದೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರು he has got vision, but he has to be trained and he will get trained. ಮುಂದೆ GSIES definitely it has got future. ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, not only to the employees, even not only that, even for pay commission ಗೆ, pay revision ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ಸಿಗೆ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಪೇ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದುಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈಗ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, DDGಗಳು, HODಗಳು, ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಅವರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ. ನ್ಯಾಯ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಿವಸ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಅವ್ರ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಳೆಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದು, ಅವತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ.
ಅವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಇರಿಕ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಅದ್ರ ಸಂಗ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೂ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳಿ, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೆನಿ ಮೆನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Can I request Mr. Anand to speak a few words? Respected dignitaries of the dais, my dear friends, ladies and gentlemen, and my dear friends from all the other regions, I once again thanks Ravindra who invited me for this conference. In 2017, I was a very active member of the CS, and after getting promotion as an officer, I had to resign. I had a very good opportunity to share my friendship with Ravindra and other team. Mr. Sudhakar Rao and Mr. T.K. Singh were the founders for this employees. They fought a lot to get recognition because we were in the leftist parties and other staff in that is Congress. So nothing was done. After Sudhakar Rao and Praveen Kumar Singh, they fought and got our rights and we enjoyed till retired in 2020. Sir, my name is Anand from RSS. So I thank all the organizers for giving me an opportunity to say a few words, and I wish the new body all the best. Kantar will be able, he is capable and he can do it. I once again thank one and all. Namaskar. Shri M. Sudhakar Rao, Secretary General, to address the gathering. डायस पर उपस्थित भट्टाचार्य जी, हेड ऑफ ऑफिस RSS हेड ऑफ ऑफिस कर्नाटक यूनिट, और बाहर से जो आया मेरा दोस्त लोग, योग होने के बाद भी यहाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि हम कॉन्फ्रेंस के लिए सिर्फ नहीं आए, फिर था रविंद्रा जी का ऑर्गेनाइजेशन का वो से आज जी RSS का तरफ से नहीं है, एक GS एम्प्लॉइज का वो से समझ लीजिए। इसलिए वो प्यार से जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद और यहाँ रिटायर होके मेरा जो फोटोग्राफर दोस्त था, उनका डिजिग्नेशन क्या आज तक मैं नहीं जानता है, बटरे जो पुकारते थे हम, वो अपने आप को परिचय कर रहा था। इससे पहले एक लड़का के कैमरा, मैं सुबह आते ही पूछा आपको पहचानना मुश्किल हो रहा है, तो ये वो अभी बेंगलुरु में शायद नहीं है, कोई दूर से आया, तो रिटायरमेंट का बात नहीं, शिवन्ना संपर्क जो भी इधर से आया, आनंद राव जी, तो एक जो प्यार भावना था रविंद्र जी को, वो ध्यान में रखिए। जो योग बनने के बाद भी कुछ लोग आगे पीछे सोचते हैं कि यूनिट का काम मीटिंग में जाने के लिए योग बन गया, वो भी जयपुर से कनाडा से योग बनने के बाद भी आ रहा है, जो होगा देखा जाएंगे, हम तो जाएंगे ही। तो एक अलग किस्म की भावना है लोगों का, तो वो भावना सबके साथ नहीं होते हैं, शायद मेरे साथ नहीं हो सकता है, थोड़ा इगोइस्टिक फिल्म ऐसा भट्ट ने कमेंट किया, वो सही है हकीकत में, लेकिन रविंद्रा जी ने, अब बहुत लोग जो हिंदू धर्म पालन करते हैं कि तिरुपति, त्रिशूर या कहीं गए, गजराज खड़े होते हैं, मुंडी हिलाते रहते, लेकिन गजराज जब मुंडी हिलाना बंद करके दूसरे रूप में जाते हैं, तो वहां कोई भक्त तैरते नहीं, सब भाग जाते हैं। तो जिंदगी भर ये गजराज मुंडी हिलाते रहे, हंसते रहे, कभी दूसरी रूप नहीं लिया। ये भी था 2014 जो कनाडा कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी जनरल बनना था, ये हमारा लफड़ा हो रहा था, तो ये उठ के बोला हम नहीं बनेंगे। ये कभी लीडरगिरी करने के लिए सामने आए नहीं, उनको ढूंढते लीडरगिरी गया, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया। ये भी हकीकत बात है। यहाँ बहुत लोग जबरदस्ती किए होंगे, जनरल सेक्रेटरी आया, उससे पहले तो वो लीडरगिरी के लिए सामने नहीं आता था, तो अलग कैरेक्टर है, इसलिए हम लोग आके इधर बैठे, इतना आदमी और इतना लेडीज यहाँ बैठे हैं। अगर यही हैदराबाद में होता या कलकत्ता में होता, इतना लेडीज नहीं दिखता है, लगभग 40% लेडीज है मध्यम माध्यम से। ये लेडीज का इसलिए कमेंट कर रहा हूँ, जब मैं
हम लोग यहाँ जितने बैठे हैं उसमें से एक आदमी छोड़ के सब अलग अलग यूनियन छोड़ के एम्प्लॉय संघ में फॉर्म करने के लिए आए थे। 2014 अगस्त यहाँ आरओसी चल रहे थे, हम लोग यूनियन छोड़ दिए GSIA, लेकिन टोटल आरओसी कंट्रोल में थे GSIA का। हम सब लोग एम्प्लॉय संघ में आरओसी करने लगा, ये इसी बगल में DDG का कमरा में पीछे जो कॉन्फ्रेंस हॉल है। तो कलकत्ता से एक फोन कॉल आता है कि आरओसी बंद करना है, ये लोग अभी GSIA में नहीं है, GSIS में चले गए। लेकिन उस दिन 60-70 लेडीज आके घुराव किया, ये कहीं बाहर नहीं होता है, सिर्फ यहीं पर होता है। तो उस दिन आरओसी करना पड़ा जबरदस्ती। कनाडा में बहुत कुछ कंप्लेंट होते हैं, स्वपक्ष विपक्ष ऐसा कोई संबंध ही नहीं है, हमेशा कंप्लेंट कुछ होते हैं। जैसा रिसेंटली कुछ कंप्लेंट हुआ, सदन का 32 कैंसिल हुआ, उस समय आरओसी बंद करने के लिए कुछ कंप्लेंट हुआ, उसमें स्वपक्ष पक्ष नहीं देखते हैं, कनाडा का बाहर, इतना ही हमेशा। लेकिन हुआ उस दिन आरओसी मीटिंग, जबरदस्ती करना पड़ा, दीदा ने छोड़ी सदन और चेयरमैन ऑफ आरओसी। तो ये ऐसा कोई रीजन में आजकल दिखता नहीं। तो ये जो यहाँ का लीडरगिरी का जो करते हैं उसको ऊपर प्यार पाना हो, या सबको इकट्ठा ले चल रहे हैं, वो जेंडर नहीं देख के, मेल फीमेल नहीं देख के, या जो भी क्वालिटी है वो भी है, उसका रिजल्ट है आज यहाँ बैठे आप लोग, मैं भी इधर खड़ा हूं। तो उसके लिए सबसे पहले नेता था बटरे, हम काम करते थे, जनरल सेक्रेटरी स्टाफ यूनियन। यहाँ कोई किसी को सौभाग्य नहीं है कि जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन वाला चिंता नहीं है कोई, एक आपका बीच में बैठा है बटरे, जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन, जनरल सेक्रेटरी GSIA। तो हमेशा में मजाक करता था, वो भी हंस के जाते थे, कभी गुस्सा नहीं। तो इस कॉम्प्लेक्स की जो खूबी है, बैनर बदले लेकिन आदमी इकट्ठा ही था, हमेशा हंसते हुए था, मिलजुल के चला। डिफरेंसेस कभी दिखता नहीं था, दूसरी जगह में डिफरेंस दिख जाता है, चला में नहीं होता है, लेकिन यहाँ कभी हम सुना नहीं। कोई भी कॉन्फ्रेंस में सर्किल हो या रीजनल हो, ये हुआ था इंडिया कॉन्फ्रेंस ग्रुप 2001 में GSIA में, थोड़ा खून भी बहा, उसका भी कारण बाहर वाला नहीं, हेडक्वार्टर वाले है जो कलकत्ता से आए, दो ही ग्रुप। हम कुछ उस तरफ गए, हम कुछ उस तरफ गए, यहाँ तो लफड़ा हुआ था उसका। इंडिया कॉन्फ्रेंस छोड़ के रीजनल कॉन्फ्रेंस में कभी कुछ प्रॉब्लम आज तक नहीं सुना। तो उम्मीद रखता हूँ यही आने वाले दिनों में भी, जैसा बच्ची बोला, आनंदा जी बोला, बहुत लोग बोला है, इसी को आगे ले चलेगी उम्मीद रखता हूं मैं। और कहा कुछ लोग कमेंट किया रेगुलेशन को लेके, रेगुलेशन मिला, यूनियन पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 आदमी मिलेंगे यूनियन पैदा हो जाएगा। कनाडा में इतना यूनियन है, इतना यूनियन का रूम है, उसको गिना मुश्किल है, हिसाब करना मुश्किल है। ड्राइवर्स यूनियन, प्रोग्रेसिव ड्राइवर्स यूनियन, क्लास 4 कर्मचारी, दूसरा क्लास 4 कर्मचारी, स्टेनोग्राफर यूनियन, ज्यूडिस यूनियन, अलग अलग बहुत कुछ है। लेकिन ये 5 साल का रेगुलेशन आने के बाद जनरली गवर्नमेंट के खिलाफ जैसा असंतुष्ट बढ़ते हैं, यूनियन को पूरे असंतुष्ट बढ़ते हैं, या लीडर के ऊपर असंतुष्ट बढ़ते हैं, नाराजगी। लेकिन अभी परसेंटेज बढ़कर दिया है 42.44% GSI एम्प्लॉय संघ को, आप लोग ने दिया, और 25.97 यानी 26% दिया GSIA को। जहां 49% का मैं प्रेसिडेंट था ऑल इंडिया यूनियन का, तो घटते गए। और जहां मैं पैदा किया, मेरा जो जन्मस्थान बोलते हैं 822, ये सब नहीं है, यहाँ बोतलों का टोटल कर्नाटका भी बीच में स्टाफ पहले नहीं था, तो 822 ही जन्मस्थान था। तो उसका दुख लगता है हमको 1.02%, दुख का साथ बोल रहा हूं। जो मेरा घर है वहां पर कोई बचा ही नहीं है, तो फेल्यूर लीडरशिप का है ये पता नहीं मुझे। हम लोग थे जब GSIA में थे 822 दूसरे प्लेस में था, जब नया एक पैदा हुआ वो तो 3rd प्लेस में था, 3rd प्लेस से ग्रेजुअली आउट होते गए कि स्टाफ यूनियन के पास 4% है, 4.5, लेकिन 822 का पर्सन नहीं। तो ये परिणाम जो हो रहे हैं लीडरशिप के अंदर, जो डिफरेंसेस आगे बढ़ते हैं या इगोइज्म बढ़ते हैं या हम तुम में हो जाते हैं, वहां यूनियन बर्बाद हो जाएगा। जो अभी वो झट जो अभी बोल रहे हैं कि फाउंडर जो मैं फाउंडर का जो कहते हैं GSI एम्प्लॉय संघ का भी शुरू हुई, तो ये आगे कहां तक जाके रुकेंगे देखेंगे। तो जो नया लीडरशिप जो आते हैं उसकी जवाबदारी बनता है कि इसको ये 42.44 हम जो छोड़ के जा रहा है, या रविंद्र सुधाकर राव एक बार पहले छोड़ा, भी हम लोग छोड़ रहे हैं, तो 43.44 तो भी करे आने वाला 5 साल बाद। 5 साल तक कोई रहे ना रहे, ये मेंबरशिप में, ये सीट अलॉटमेंट में, ROC ऑफ रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट हो रहा ही नहीं है 2006 का बाद, अगर होगा तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएंगे।
समझो मेरा पास 200 है सदर्न रीजन में, 185 चले गया, 15 बचे बस है मेरे आरओसी मेंबर के लिए। लेकिन प्रयास ही होना चाहिए 200 का जगह 201 बनना है नेक्स्ट काउंटिंग में। अगर मेंबरशिप कम हुआ, कारण क्या है, एम्प्लॉइज रिटायर हो रहा है, नया एम्प्लॉइज रिक्रूट नहीं हो रहा है। जहां 800 मेंबरशिप से हम शुरू किया सदर्न रीजन जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, आज 200 में आ गया। उसका मतलब ये नहीं कि हम कामयाबी नहीं है, एम्प्लॉइज ही नहीं है। जहां 1250 था जब मैं जनरल सेक्रेटरी लिया, आज 200 प्लस है सदर्न रीजन का मैनेजमेंट पोजीशन। ये हालत में कितने भी प्रयास करें परसेंटेज तो बढ़ेगा नहीं, एम्प्लॉइज का मेंबरशिप बढ़ेगा नहीं। 90% जाके 91 होगा, लेकिन 200 जाके 400 तो हो ही नहीं सकता। उसी में तो बांटना है, मेरे उसी में तो लेना है, सामने वाला भी उसी में से लड़ेगा, हम भी उसी में से लड़ेगा। तो ये सुबह डेलीगेट सेशन में बोला था मैं कि कल अगर दूसरा कोई बोले तो मैं भी थोड़ा डाउटफुल रहता था, लेकिन डीजीजी से कुछ बताया कि आपका रेजिग्नेशन हो चुका है, तो हम मान के चला, उनको धन्यवाद बोला। अभी इस ओपन सेशन से भी उसको धन्यवाद बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा रेजिग्नेशन मिलने का थोड़ा एक्टिव पार्ट, हम तो यही करता है कि मेंबर को कैसे जुड़े परसेंटेज बढ़ने के लिए, हमारा 30% रहने के लिए, तो हम किया। लेकिन उसको आगे रेजिग्नेशन दिलाने में डीजीजीएसए का रोल बहुत बड़ा था, क्योंकि इससे पहले 5-10% जब हम सबमिट किए थे जीएसए को, उससे उस समय रेजिग्नेशन आया नहीं, तो 2-3 साल का बाद यूनियनी लफड़ाबाजी में आ गए। लेकिन आज वो नौबत नहीं आया, तो डीजीजीएसए उसका टीम जो भी किया, जो मिनिस्ट्री में कुछ परसू करके, पहले यूनियन वाले को मालूम होता, लेकिन अभी डीजीजीएसए को पहले मालूम इसका क्या है, वो थोड़ा ज्यादा परसू किया जीत पे लेके, तो उसको हर एक दफे मेरी ओर से, आपकी ओर से, सबकी ओर से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ इस मंच से। और इसका बाद अब इस काउंसिल आर से शुरू होगा अभी, और अरेना कॉन्फ्रेंस 5-6 तारीख होने वाला है जयपुर में। अभी आप बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद रिटायर हो जाएगा, लेकिन रिटायर गवर्नमेंट सर्विस के लिए, आरएएस में पेरोल के लिए या ओसीबीएस में उसका तनख्वाह के लिए रिटायरमेंट होगा, तो दूसरी रूप तो उसका ऐसी है, रविंद्रा तो ऐसी है। मैं इस मंच से आज का सेक्रेटरी जनरल होने के नाते उनको इन्वाइट कर रहा हूँ आप सबको ओर से, वो जयपुर आए, हमारे डेलीगेशन में बैठे, हमारे ओपन में बैठे, आपका समाज है। जहां तक वोटिंग नहीं आता है, कोई बाहर वाला बैठे क्यों कुछ नहीं आते, जब भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई साहब आप थोड़ा हाथ मत उठाइए, तो उतना लोगों तो आज तक आए नहीं है हाथ उठाने की, तो अभी भी नहीं आएगा जयपुर में भी। तो मैं रविंद्र साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आप कांतिराज से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको मना के उनको साथ में लेके आएंगे एज ए गेस्ट, आपका जवाबदारी है, तो जयपुर में आना ही है वो। तो इसका बाद उसके साथ मैं भी गेस्ट बन जाता हूँ नेशनल कांग्रेस के लिए, वो बुलाया नहीं बुलाया भगवान जाने, अगर वो बुलाए भी तो हम जाने का पोजिशन है कि नहीं, हमारे हाथ कोऑपरेट करेगी नहीं, फैमिली का सिचुएशन हम जा सके नहीं जा सके, इस कॉन्फ्रेंस में तो हम दोनों मिलना चाहते हैं। तो उसको बैठा ही करे, वो तो एक तो जयपुर में बैठेंगे, वो तो आएगा ही, एक मजदूर परिंची भी है, मैं ऑलरेडी इन्वाइट कर चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि वहाँ आए, आप अच्छा रहे, तो आपका भी शायद लास्ट कॉन्फ्रेंस है, शायद क्या लास्ट कॉन्फ्रेंस है, तो हमारा साथ रहे, कुछ घंटे हमारा जयपुर में कॉन्फ्रेंस में हमारा साथ रहे। तो ये और जो रिटायर हो गया बैठा है, सवर्णा जी, समत कुमार जी जो भी है इधर आए, आनंद राव जी भट्ट जी, आप भी अगर आए कॉन्फ्रेंस में और हमारा शोभा बढ़े, तो और कुछ घंटा हम आपसे मजाक कर ले, आप हमसे मजाक कर ले, तो अच्छा लगता है। तो जयपुर से वापस आने के बाद मैं हैदराबाद में हूँ, आप इधर है, और जब बात कर रहा था इधर सुरेश जी बोल रहा मेरे रिटायरमेंट साहब नेक्स्ट मंथ, मैं जज से बोल दिया फिर आऊंगा फिर 31 में, क्योंकि उस दिन और भी श्रीमती रजनी जी का भी रिटायरमेंट है, ऐसे डॉक्यूमेंट बहुत दिन से उनके साथ हम काम करते हुए। और सुरेश जी वॉलीबॉल में आते हैं, बेंगलुरु में आए तो गाड़ी लेके हमारे साथ चलते थे बहुत सालों से, तो अभी तो मैं सर्विस में 31 में फिर आऊंगा, अगर ऊपर वाला साथ दिया तो यहाँ बैठेंगे इस हाल में, उस दिन भी हम आपके साथ चाय पियेंगे। तो इसका साथ ही साथ ऑलरेडी अपना नया कमिटी तो घोषित किया है, उससे प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो आज का माहौल है, सिस्टम नहीं था जब रिकवरी के लिए लास्ट अप्रैल में आपने सबमिट किया, अभी सुना है कि रिटायरमेंट हुआ कुछ भी हुआ, लेकिन अभी 70 हुआ, तो नया पुलिस का साथ मतलब इम्प्रूव हुआ, आगे बढ़ा है। तो आप जो भी नया आया आप मिला के हमेशा हमको यही बोल सुनाइए, रिटायरमेंट के बाद भी बेंगलुरु में बढ़ रहा है, घट रहा नहीं, इतना ही आपसे उम्मीद रखता हूँ, धन्यवाद। For envisaging the growth of GSIES, and it is a very good news that GSIES has got the recognition from Ministry of Mines, and we assure you that we will carry on the GSIES activities at Bangalore as per your expectations. Thank you, sir. Now we have the most excited moment of the day.
farewell to Shri T.S. Ravindra, General Secretary and one of the founder members of GSIES. He is superannuating on 30/4/2022. Now may I request all the dignitaries on the dais to felicitate Shri T.S. Ravindra. Farewell is on behalf of the Sangh, GSIES. Give a grand applause, please. We have a special memento from RSAS, and this shows he has completed 13 at RSAS and 8 years as General Secretary GSIES. Felicitation from Kolkata. CSU Kolkata. Put your hands together for the felicitation. A memento from Hyderabad, Hyderabad. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಷಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ. ರವಿ ನಗಪ್ಪ ಅದೇನದು ಮಗು ಬೇಟ ಗಿಟ್ಟ ನಗಪ್ಪ. From Tamil Nadu Pondicherry, Chennai, KTV Brothers.
अम्बेडकर जी से पहली बार मैं एक माला डाला। हमेशा आदत थी मुस्लिम लीग दल ऑफिस कांग्रेस में उनका पैर के सामने फूल चढ़ाना निकल जाना कार्यक्रम स्टार्ट होने के पहले, लेकिन आज एक सौभाग्य मिला उनको फूला चढ़ाने के लिए, साथ साथ इनको भी फूला चढ़ाए। मैं मेरे हाथ से कुछ कार्यक्रम किए, शायद पहली बार है हमारे सामने नहीं आते, तो धन्यवाद, यही बोलने के लिए मैं सामने आया। Shri T.S. Ravindra, General Secretary GSIES, to speak a few words on this occasion. Please, sir. My dear friends and officers, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि 29 में यही रिपीट करना है, इसलिए अधिक ज्यादा नहीं बोलूंगा। Anyway, I'm very happy our HOD and HO and the SUKJ all attended. I'm very happy Mr. Sudhakar and all my colleagues from other regions and our friend, very close friend M.K. Sharma and Madhubani also attended. So I'm very happy and all officers who have come from this RSS and my staff, they have given full respect to me. I don't know, I'm nothing. Even though you have shown me this much of affection, really entire my life I have not forgot this one. Because I don't know, because without my knowledge, all this will happen. Even last 3 days back I have seen that banner. So without my knowledge I have put the banner. So then I spoke to somebody, no, it is not correct, I don't like this one. No, sir, today is Monday, first day of the week, don't went for Galing Mati, I suppose. Because people have shown much affection, I am very happy. So I don't know what I have done, but I have not done any mistake and I have not any mistake to anybody. So that's why I am very happy. Even my HOD and HO, they have given Ashwell also and present HOD, HO also, they have given full cooperation. So I hope from next body also, this will continue like earlier. I am very happy giving me favor on behalf of our employees and thank you very much, sir. So definitely we'll be missing you, GSIES, but we will carry on the activities as per your guidance. And telling this, we are coming to the end of this program, and I request Shri Kant Raj, Chairman GSIES, to deliver the vote of thanks. After this, we will have this will be followed by lunch, and we can have lunch in the basement of Vasudha Bhavan. Thank you all. 1 minute, I have forgotten to tell others' names, so Mr. Govind Sarkar and from Matthew and Chandraya and from Tamil Nadu, Sri Prabhakaran, Selvakumar and Netukula, and especially I spoke to Balaya also, he came from field. So and all the members, retirees also, especially Mr. K. Ramesh Bhatt and Anand Rao, Shivana, Sampad, thank you very much. Upadhyaya, thank you very much. And Joshi also. Yes, no, because my Avgana, In a second tour, RSAs. Good afternoon, everyone. It is my privilege to have got an opportunity to thank for this fabulous day. First and foremost, I would like to thank all the GSIES members for electing me as the General Secretary, and I also congratulate all the office members. On behalf of GSIES, I, Kandra General Secretary, extend a hearty thanks to our chief guest, Sri Kumar Bhattacharya, DDG and HOD RSAS, who spared time for his busiest schedule to grace the occasion. Sir, today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. I would like to thank Sri K.V. Maruti, Director in HO, and Sri K.N. Rajaram, Director in HO SMKG, for the presence and cooperation. I also thank Sri M. Sudhakar Rao, Secretary General GSIES,
for his valuable suggestions. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. My gratitude to all speakers for gracing the occasion and sharing their opinions today. And even like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. A special mention to our respected Sri T.S. Ravindra ji for being the catalyst and standing as a pillar of strength. We have been fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated staff of GSIES who are well versed in their jobs. I'm short of words for their involvement and their willingness to take and complete tasks beyond their comfort zone. With a deep sense of appreciation, I thank all the invitees who have come down from other regions and senior officers and members of GSIES to participate in this event. Also, I thank all the retirees, RSAs for happily accepting the invitation and gracing this occasion. I would also like to thank